Hello, good morning and good morning. Welcome to this lecture of electronics. Actually, we were studying microcontrollers and we have almost completed block diagram and addressing modes of microcontroller 8051. Today, we are going to continue with the same. So, let us start with the presentation, I guess. I hope my presentation is visible to you. Right. So today we are going to learn more about, say, yes. So we will be studying instruction set of 8051, and I guess there are some more topics which are concerned with this 8051, which will be coming in the coming slides. So we'll be continuing with the what was started in the last class, right? So let us begin with that. So this is my presentation for microcontroller, and we have almost completed this 8051 software overview, in which we have studied addressing modes, instructions of addressing mode. Then we'll study instruction state, and then we'll try to complete some of the programming in this. So yeah, 8051 addressing mode, we have completed this. So CPU of 8051 access data in various ways, which are called addressing mode. Now, how the CPU is going to access the data, that is what we take it in the form of addressing modes, right? So we are having immediate addressing, register addressing, direct, indirect, and then we are register indirect and external direct. So we have studied this immediate addressing, which means the source or the operand is a constant, where we directly put the constant in the instruction itself, right? So that is called as the immediate phase, means move 05 in register A, right? So 05 is the data, and that data is being immediately moved to the register A. So this is the instruction. We have studied this. Then we have some examples of it. So and these are some of the examples of the immediate addressing modes that we are having. Is it clear? It's not clear. So with this can load into the registers. So this is what we have completed in last classes. Then register addressing modes, in which the register is being addressed, means the data is in the register itself, and the data to be shifted or the data to be processed is also in the register. So one-to-one registers that we are having. So these are the register forms, which we call it as register addressing modes. Then the source and destination registers may match in the size. Okay. Yeah, these are some more instructions. So the movement of data between Rn registers is not allowed. In the register, Rn means the number of registers that we have to mention over. N. So move R4 to R7 is a invalid. So this is not an instruction which is used in microcontroller, but we have to use a hashtag over there. So we'll let you know. Direct addressing, it is most often used direct addressing mode, and to access RAM location that starts from 30 to 7FH hexadecimal. Okay, the entire 128 bytes of RAM can be accessed by using these instructions. Contrast with this with immediate addressing mode, there is no hashtag, hash sign in the operand, right? So इसमें नहीं है, उसमें होता है. So move R0 to 40H, which implies that save the content of 40H, which is in the RAM, to the register R0, right? So this is the instruction. Similarly, we are having this move 56HA, means save the content of register A to 56H address of the RAM. So these are some of the direct addressing. Then special function registers we have studied and their addresses. So these are some of the addresses which we need to say define when we give an instruction. So these are some special function registers which is being used. Then these are some more. So this is how you can and say access the special function registers. So you can name them and you can use them. There are having, we have completed, I guess, all these things. These are some of the examples where we can use the registers. So write a code to send 55H
to ports P1 and P2 using their names and their addresses. So this is a small program in which we can understand how the program can be written. This is a simple example, and we need to give it to port P1 and P2, right? So move A hashtag 55H, which implies that A is being loaded with the content of the 55th address of that RAM, right? So that is why we have put the hash, right? So 55H. Now move A to P1. We always read in the opposite direction. The second instruction is move the contents of register A to port P1, right? And then move the content of register A to port P2. So move A to P2 ऐसा पढ़ते हैं हम लोग. ये जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, this is move A to P2, right? So we always give the source first and then we have to mention the destination. But while writing, we put destination first and then we write the source from where we have to move, right? So this is the simple program. Then we have from table 5.1, P1 address is equal to 80H and P2 address is A0H, right? So this can be also written in this fashion: move 55H to A, right? And then we can move A to 80H. So this is the address of port P1. So now we are mentioning the address as per the table which we have shown in the last slide, right? So yes, then we are using this move A0H, A to 0A0. This is for P2. So 52 is moved. So if I need to show you, I can show you the, yes. So this is the destinations of the ports, addresses of the ports. Yeah. So here you can have this port P0 is 80H, that is the address, and P1 is having 90H, P2 is having 0A0H, right? Whereas P3 is having 0B0H. So these are the addresses. So according to the addresses also we can put the data. Are you getting this? So this is how it is written in the this example here. So we have used here address. So port 1 address is 80H and port 2 address is A0H, right? So this is the example. Then we have stacked and direct addressing mode. What are stacked? Do you know stacked? पता है हम लोगों ने पढ़ा था stack कभी तो भी याद है क्या? What is stack? What is the simplest meaning of stack? General meaning of in English in stack. Stack मतलब क्या? कितने लोगों ने रोटियां बनाई हैं? अरे बॉयज में से किसने नहीं बनाई? गोल बनाने के लिए कला की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है. डब्बे का ढक्कन यूज करो, मस्त गोल रोटियां तो कर सकते. तो रोटियां जिन लोगों ने बनाई है वो क्या करते हैं? रोटियां बनाने के बाद सेकते हैं. उसके बाद क्या करते हैं? सेक कर होने के बाद डायरेक्ट खाते क्या? तवे से निकाल रख देते. क्या करते? कैसे रखते हो आप? इन स्टैक. इन स्टैक मतलब वन बाय वन यू पुट इट ऑन the rotis itself. तो पहले रोटी आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी. What you are doing? You are putting in, arranging it in stack. That is called as a stack. To arrange something in line, right? One after the another. That is called as a stack, right? तो इसी का मतलब होता है stack. हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग रजिस्टर्स बहुत कम है हमारे पास और उन रजिस्टर्स को हमको यूज करना है बहुत जगह. तो ऐसे समय में क्या होता है कि उसमें जो ऑलरेडी डेटा है वो डेटा मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए ही सही, बराबर है. तो मैं क्या करता हूं, उसको वो डेटा कहीं तो भी टेम्पररीली स्टोर करके रखता हूं. समझा के? राइट. सो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैक. तो पहले मेमोरी लोकेशन में डेटा जाएगा, फिर दूसरी मेमोरी लोकेशन स्टैक पॉइंटर डिनोट करते रहेगा, फिर दूसरे रजिस्टर का डेटा डालना है तो उसके ऊपर जाएगा,
फिर तीसरा, चौथा, ये समझा, फॉर टेम्पररी। और जब हमको उसको यूज करना है तो हम उसको क्या करेंगे, पहले पुश करेंगे यानी डेटा वहां स्टोर करेंगे, बाद में हम उसको पॉप करेंगे। दीज आर द इंस्ट्रक्शन, तो पुश एंड पॉप, राइट। सो पॉप करते वक्त वही डेटा वैसे है। अब आप जब रोटियां रखते हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले रोटी नीचे जाती है और सबसे आखिरी रोटी ऊपर आए, राइट। तो हम लोग इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट आई है वो सबसे पहले जाएगी, राइट। तो क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हैव यू गॉट दिस? So same concept is used in the push and pop instruction or in the stack. जो लास्ट आया वो पहले जाएगा, उसके बाद का नेक्स्ट आएगा, उसके बाद, और जो पहले सबसे पहले आया है वो सबसे लास्ट में है, right? So this is the arrangement of stack, and we have the direct addressing modes. So we'll study this in depth. Only direct addressing mode is allowed for pushing and popping the stack. So pushing and popping मतलब push the data from the register to the stack और stack memory. एक कहीं तो भी लोकेशन हमको प्रोवाइड किया हुआ है ये स्टैक के लिए स्पेशली, राइट। तो स्टैक में डेटा डालने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, पुश, और वो डेटा वापस लेने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, पॉप। तो इसलिए वो दोनों लिखे हुए, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज अलाउड फॉर पुशिंग एंड पॉपिंग द स्टैक, राइट। देन पुश ए इज invalid, this is invalid instruction. इसके बाद what is the valid instruction, pushing the accumulator onto the stack must be coded as push 0E0H. Now this is the address, 0E0H is the address. We can't direct push दे दिया मतलब वहां चलेगा ऐसा नहीं, we have to mention the address also, and this is the instruction. Show the code of push R5 and A onto the stack and then pop them back into R2 and B, where B equal to A and R2 equal to R5. So ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है how you are going to push the data and how you are going to pop the data, right? So push 05, push R5 in onto stacks. So R5 रजिस्टर का डेटा हम लोगों ने कहां पे डाला, पहले stack में। Now what is a stack? Have you understood this? Stack is some part of the memory location which is being mentioned or which is being detailed for those stacks to maintain the data of the stack, right? तो already दिया हुआ है, that is being defined in the microcontroller itself. तो आप जब भी दोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो जगह पर जहां पर आपका डिफाइन किया हुआ, या आप चाहते हो कि आप अपने से डिफाइन करो, तो उसको स्टैक पॉइंटर को उतना आपको लोड करना पड़ेगा, right? And then it will go direct. So push 0E0H. Now what 0E0H is? The address. So push register A onto the stack. So you can't push A. आप वो instruction invalid दिखाया हुआ है. Push A is a invalid instruction. तो A का डेटा अगर मुझे stack पर डालना है तो मैं क्या करूँगा? Address डालूंगा. Push 0E0H. Right? तो ये एड्रेस करेंगे, then pop 050H. अब पॉप करना मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, वो जो डेटा हम लोगों ने वहां स्टैक पर स्टोर किया था उसको वापस रिट्रीव कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज बीइंग रिट्रीव, बट नाउ वी हैव एड्रेस इट टू द रजिस्टर बी, राइट। तो पुश हमने रजिस्टर ए का डेटा किया और पॉप हम किस में कर रहे हैं, वही डेटा रजिस्टर बी में आ रहा है। सो पॉप 0F0H, पॉप टॉप ऑफ द स्टैक इनटू रजिस्टर बी। अब टॉप ऑफ द स्टैक, देखो हमेशा मैंने जो बोला था लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी लास्ट में डेटा है उसको नहीं पता कौन सा डेटा है, रजिस्टर ए का है, रजिस्टर बी का है, वो नहीं पता उसको। इससे इतना पता है कि जो भी पहला ऊपर डेटा है वो हमको पॉप करना है यार, वो डेटा हमारे को वहां पे स्टोर करना है। तो वो किया उसने पॉप, यानी लिखते वक्त हम लोगों ने वैसा लिखा पॉप टॉप ऑफ स्टैक इनटू बी। सो नाउ रजिस्टर बी इक्वल टू रजिस्टर ए। सो पुश किया मतलब रजिस्टर ए का डेटा कॉपी हुआ, ये समझता क्या हुआ, कॉपी हुआ, यानी रजिस्टर ए का डेटा डिलीट करके वहां पे कॉपी किया ऐसा नहीं है, वहां ट्रांसफर किया ऐसा नहीं, वहां पे भी है और यहाँ पे भी, ए में भी है और बी में भी, पर हम ए का डेटा भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ए का डेटा ऑलरेडी कहीं तो स्टोर करके रखा हुआ इसके लिए। ये समझ में आ रहा है क्या?
पक्का, राइट? सो ये किया हुआ है. नाउ रजिस्टर B इक्वल टू रजिस्टर A and now pop top of the stack into R2. Now R2 equal to R6. तो पहला वाला डेटा जो किया था वो हमारा कहाँ पे आ गया? R2 में. समझ गए? pop 02. So 02 is the address of register R2, right? So इस प्रकार से हम लोग वहाँ छोटे-छोटे प्रोग्राम लिखते हैं. Register indirect addressing mode. So a register is used as a pointer to the data. Data कहाँ पे है उसके लिए है. So this is indirect. Indirect बोला तो मतलब क्या होता है? Indirect मतलब हम लोग register to register डेटा को हाथ नहीं लगा. हम लोगों ने कहा कि ये रजिस्टर का डेटा जो भी होगा वो कहाँ कॉपी करना है? ये रजिस्टर. So we are not using the data. We are not writing the data. We are writing the destination and source register. जहां से डेटा कॉपी करना है और जहां पे कॉपी करना है वो दोनों. Only registers RO and R1 are used for this purpose. So R2 to R7 cannot be used to hold the address of an operand located in the RAM, right? So this is the instruction that RO and R1, R0 and R1 hold the address of RAM locations. They must be preceded by the @ symbol, @ sign. तो उसको @ sign वहां लगाना है, वहां हैश लगाना है, यहाँ पर क्या साइन लगाना है? @ उसका एग्जांपल देखते हैं. उसका एग्जांपल कैसा है? या सो मूव A @RO. तो अब पढ़ते वक्त हम लोग उल्टा पढ़ेंगे. सो मूव द कंटेंट्स ऑफ RAM whose address is held by register R0 सर. तो R0 में क्या है? R0 में क्या है? एड्रेस. कहां का? रैम का. और रैम में क्या है? डेटा. समझाइए? सो वी आर इनडायरेक्टली एड्रेसिंग द एड्रेस ऑफ द डेटा. वी आर नॉट एड्रेसिंग द डेटा. समझाइए? डायरेक्टली हम लोग वहां पर R0 पे हम लोगों ने एड्रेस डाला है रैम का, राइट? और हम लोग वहां पे डेटा रखा हुआ है तो उसको कॉपी कर रहे हैं. सो मूव the contents of RAM whose address is held by R0 into register A. This is what it means. ये वाले इसका इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? ये वाले इसका move A @RO. So RO का जो एड्रेस होगा, जो भी एड्रेस RO में होगा वहां से जाके डेटा कहाँ जाएगा? वो रजिस्टर A में. Similarly here we are using the vice versa of it. Move the content of register B to the address which is being loaded in the register R1. RAM का जो एड्रेस है R1 का, वहां पर आपको डेटा स्टोर करना है. किसका? रजिस्टर B का. Have you got this? समझ रहा है? Right? So whose address is held by R1. So move the contents of register B into RAM, जिसका एड्रेस कहां पे है? R1 के रजिस्टर. ठीक है? So these are some of the instructions. Then the next is register indirect addressing mode. So write a program to copy the value 55H into RAM memory location 40H to 41H using direct addressing mode, register indirect addressing mode without a loop, and C with a loop. तो हमको ये तीन प्रकार से ये छोटा सा प्रोग्राम ऊपर लिखना है. ये किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग? कौन से इसके लिए लिख रहे हैं? माइक्रो कंट्रोलर 8051 के लिए लिख रहे हैं. पता है ना? उन्हें वो भी बताना जरूरी है. ठीक है? सो माइक्रो कंट्रोलर के जैसे हम लोगों ने 8085 की प्रोग्रामिंग की थी, इंस्ट्रक्शन सेट लिखे थे, उसके ऑप कोड्स वैसे ही हमको इसके भी लिखना, राइट? सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट? सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दैट. द फर्स्ट प्रोग्राम व्हिच इज अ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, उसमें लिखा हुआ है. So what we have done, move 55H to A, पहला, ठीक है? रजिस्टर A में. तो उसका क्या मतलब होता है? लोड A with the value of 55H, right? Then what we'll do, move A to 40H. Now what is 40H? Copy the data of register A to RAM. कौन से एड्रेस पे? Which is at the location 40H.
तो ए का डेटा ऑटोमेटिकली कहां पे स्टोर हो जाएगा, रैम में, कौन से एड्रेस पर, 48. Similarly, we can write the data of A. Now we have to copy the data of A to 41H. सेम इंस्ट्रक्शन यूज किया, अब सिर्फ हम लोगों ने एड्रेस लोकेशन चेंज किया हुआ है. Now earlier it was 40H, now it is 41H. Have you got this? Right. So ये पहला हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सीधा सीधा हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया. दूसरा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. अब रजिस्टर को इनडायरेक्टली यूज करना है, मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना है, कौन सी साइन यूज करना है, हैशटैग, सॉरी हैशटैग भी @@. तो @ मतलब वहां पे रजिस्टर में हमारा एड्रेस है रैम, वहां स्टोर करना. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रजिस्टर इनडायरेक्ट. समझ रहा है क्या? पक्का? राइट. सो मूव, ये सबसे पहले ये वाला है, मूव #55H to A. मतलब हमारा डेटा कहां पर है, लोड A with the value 55H. then move #40H to R0. so load the pointer R0, यानी अब पॉइंटर में हम लोगों ने क्या डाला है, एड्रेस कहां का, मेमोरी लोकेशन रैम का 40H. राइट. देन मूव A to @RO. मतलब अब 40H वाला जो मेमोरी लोकेशन है जो R0 में है, वहां पर हमारा A का डेटा कॉपी होगा. समझ लगा है? समझा? देखो, सबसे पहले हम लोगों ने डेटा को कॉपी किया रजिस्टर ए में, फिर हम लोगों ने डेटा पॉइंटर को कॉपी किया, मतलब जो एड्रेस है उसको कॉपी किया, यहाँ पे लोड किया, और उसके बाद अब डेटा हम लोग वो एड्रेस पर स्टोर कर रहे हैं, पर इट इज इनडायरेक्टली बीइंग स्टोर, है ना. रजिस्टर में एड्रेस है, एड्रेस कहाँ का है, रैम का. तो हम ऊपर वाले से प्रोग्राम से डायरेक्टली भी स्टोर कर सकते हैं. नीचे वाले प्रोग्राम से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं. ना अगेन इंक्रीमेंट R0. देखो अभी इंक्रीमेंट किया, मतलब क्या किया, एक पहले कितना था 40H, अब क्या हो गया 41H. yes, now the data is being stored, so again the data is being copied A to @RO. अब कहां स्टोर होगा, 41 में. समझा क्या? पहले इसमें हमने क्या किया, 40 में स्टोर किया, 40 को लोड ही किया था. समझ रहा है ये वर्क? समझ रहा कि नाही समजलं? तर सांगा ना, बोला तरी. कुठे गेली स्केल, स्केल कुठे गेली, स्केल आहे का मॅडम? आज काय करे कुठेतरी स्केल. हां देख, ये यूज कर दे. अरे इथे बघा, इथे काय केलं, सगळ्यात पहले सबसे पहले वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया, डायरेक्ट स्टोर किया. ये क्या किया, लोड A with the value 55H. दिस इज डायरेक्ट डेटा. राइट. फिर हम लोगों ने इसको मूव किया, मूव A to 40H. ये क्या कर रहे हैं हम लोग, 40H इज द मेमोरी लोकेशन इन द रैम. तो हम लोगों ने ये 55H डायरेक्टली 40H में डाल दिया. ये हो गया कौन सा प्रोग्राम, ये वाला डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. फिर से हम क्या कर रहे हैं, मूव A to 41H, यानी A का डेटा जो 55 था वो कहां स्टोर हुआ, 41H. ये डायरेक्ट है, सिंपल 3 लाइन का प्रोग्राम बना. ये समझ लगा? वेरी गुड. अब यहां से स्टार्ट करो. नाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस, द सेम प्रोग्राम व्हिच इज रिटन ओवर हियर इन द व्हाइट. सेम प्रोग्राम अब दूसरे तरीके से कर रहे हैं हम लोग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स. Have you got this? ठीक, पहले क्वेश्चन समझो, अगर क्वेश्चन समझेगा तो आंसर ढूंढेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन पे ये कर रहा हूं. सो हम लोग ये वाला प्रोग्राम लिख रहे हैं, पहले ये हिसाब से लिखा, अब ये वाले हिसाब से लिखा, which is called as रजिस्टर इनडायरेक्ट. अब रजिस्टर इनडायरेक्ट में हमने क्या किया, 55H तो जैसा का वैसा यहाँ जैसे लोड किया वैसे एक्यूमुलेटर में कॉपी किया, डायरेक्ट डेटा. ये हो गया लोड A with value 55H, सिंपल, खत्म. अब इनडायरेक्ट करना है, मतलब मुझे ये रजिस्टर में वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करना. क्या करना है, एड्रेस. हाँ, वो कौन सा एड्रेस है, 40H यहाँ है तो 40H. तो मैंने रजिस्टर में R0 रजिस्टर में क्या लोड किया, 40H, which is the
address. Now what I am trying to do, I am moving the data or content of register A to the address of that memory location which is being stored in this register R0. What समझ लेगा? फिर से बता रहा हूँ. I am trying to move the content of register A which is supposed to be 55H to the address or to the memory location of which the address of which is loaded in R0 register. तो मैं डायरेक्ट स्टोर ना करते हुए क्या कर रहा हूँ, अब रजिस्टर के एड्रेस को यूज करके इनडायरेक्टली स्टोर कर. स्टोर वही होगा जो हमारा काम है, वैसा ही होगा जैसा ये वाले प्रोग्राम में, बट दिस इज द इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसेस. सो वी आर यूजिंग. नाउ दूसरा है 41H में मुझे स्टोर करना है. या तो आप ये इंस्ट्रक्शन फिर से यूज करो या 41 लिखकर, या फिर सिंपली इसको इंक्रीमेंट कर लो. तो इसको इंक्रीमेंट किया मतलब पहले 40 था, अब क्या हो गया 41 हो गया. अब फिर से मैं ये वाला डेटा यहाँ स्टोर कर सकता हूँ. अब कहाँ गया डेटा, 41 के एड्रेस पे मेमोरी लोकेशन में गया, रैम में. समझ में आ रहा है क्या? पक्का? सो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया. अब तीसरा विद लूप. अब लूप में डाल के आप लोग कर सकते हैं क्या, वो देख कैसे किया है. ये तो जैसा का वैसा ये कॉमन है सबके लिए. दूसरा क्या किया है, मूव R0 40H, ये भी वैसा ही है. सेकंड वाला, थर्ड वाला हम लोगों ने यहाँ पर एक काउंटर डाल दिया. R2 रजिस्टर यूज करें जिसमें हम लोगों ने काउंट डाल दिए 02. ठीक है. नाउ मूव A2 @R0, मतलब A के कंटेंट को कहाँ किया है, R0 के एड्रेस में. R0 में नहीं किया, R0 में जो एड्रेस है which is supposed to be 40H, राइट. फिर क्या किया, इसको इंक्रीमेंट किया, मतलब कितना हो गया 41. 40 था, अभी क्या हो गया 41. फिर हम लोग R2 को 0 कर रहे, राइट, और चेक कर रहे जंप इफ नॉट. यहाँ दोनों है, डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0. सो डिक्रीमेंट भी किया. हम लोगों को एक अलग इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ता था, कहां पर, डिक्रीमेंट वाले 8085 में डिक्रीमेंट वाला एक इंस्ट्रक्शन, बराबर है. और हम उसके बाद फिर जंप इफ नॉट 0 लगा देते. यहाँ पे एक कंबाइन करके लगाया, डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0, किसको, R2, एंड वेयर इट इज गोइंग टू जंप अगेन. हमको यहाँ पर एड्रेस देना पड़ता था मेमोरी लोकेशन का, कहां पर जंप करना है 8085 में, यहाँ हम लोगों ने स्पेसिफाई किया. सो लूप विल कंटिन्यू अप टिल हाउ मच, जब तक ये 0 होता नहीं. ये 0 हो गया मतलब अपना काम, राइट. तो ये फिर से वापस आएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा 41H में, पहले स्टोर करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर 0 हो जाएगा, तो लूप के बाहर निकल जाएगा. सो दिस इज द थर्ड प्रोग्राम विद द लूप. समझ लगा ये थोड़ा क्या प्रॉब्लम आई थी नक्की. ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को समझना है, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, आई गेस व्हिच इज नॉट much necessary as per your academics. मतलब ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर that is what I expect from your side. ये चालू आएगा, दादा बोल हेलो. हाँ चालू, ये दिखने का ना, हाँ चालू, बीच में चालू. चल. So the advantage is that it makes register indirect के क्या advantages है, लगे क्या कुछ advantages उसके register indirect के. उधर 3 इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम खत्म हो गया, इधर 5 इंस्ट्रक्शन यूज किए रजिस्टर इनडायरेक्ट में. फिर क्या एडवांटेज है, कुछ भी नहीं. वो देखो बता रहा. The advantage is that it makes accessing data dynamic rather than static as an indirect addressing mode. डायनामिक और स्टैटिक में क्या फर्क पड़ता है. स्टैटिक मतलब क्या हो गया, स्टैटिक मतलब एकदम कांस्टेंट डेटा जो चाहिए वो. डायनेमिक मतलब क्या है, आप अगर एड्रेस यूज करते हो तो आप डेटा कुछ भी चेंज करो, वहां पे आप चेंज करो, ऑटोमेटिकली आपका डेटा वही प्रोग्राम में चेंज हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक. अगर मैंने मूव 05 टू A किया, राइट, सो दिस इज अ स्टैटिक. 05 ही रहेगा वहां, उसको चेंज कर लेते हैं हम लोग नहीं. इन दैट केस अगर मैंने वेरिएबल यूज किया,
मूव R0 टू A। तो R0 को हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हो, दैट इज डायनेमिक। तो मैं जो भी मैं प्रोग्राम बनाता हूं दैट शुड बी जनरल, किसी भी डेटा के लिए यूज हो। स्पेसिफिक डेटा के लिए यूज हुआ दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक, और जो which can be changed at any moment or which can be changed by a layman or a user, that is called as dynamic. तो ये this is a advantage of indirect, इसलिए register indirect addressing mode use करते हैं। though it is having larger instruction, but एक बार हम लोग बना लो तो उसको काम ना आए। looping is not possible in direct addressing mode, तो looping क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट एड्रेसिंग में लूप कर सकते क्या, क्योंकि डेटा डायरेक्टली जा रहा है, लूपिंग में नहीं जा सकते, इसके लिए लोग वो एक है प्लस पॉइंट। देन वी आर राइट अ प्रोग्राम टू क्लियर 16 RAM लोकेशन स्टार्टिंग एट RAM एड्रेस 60H। दिस इज अगेन अ स्मॉल प्रोग्राम व्हिच कैन बी रिटन, लेट्स सी। तो ये आपके लिए है, क्या करना है, प्रोग्राम आप लिख सकते हो, आप फोटो भी निकाल सकते, मोबाइल में नहीं, rest I will be loading this in on my YouTube channel. So yeah, we are having this clear A means A को 0 किया, move 60H to R1, load pointer R1 with 60H, move R7 to 16H. now what is 16? काउंटर है ना, काउंट डाल दिया। तो हमारे को कितना डेटा करना है, 16 RAM लोकेशंस करना है, इसलिए 16 नंबर डाल दिया और उसको लूप में डाल दिया। तो उसको हर एक को क्या करते रहेगा, वो 0 0 मूव कर रहे हैं ना हम लोग, कॉपी फिर क्या कर रहे हैं, मूव A to @R1। तो R1 को इंक्रीमेंट करते जाएंगे एक एक को, और फिर DNZ DZNZ DJNZ R7 अगेन। तो 16 बार वो लूप में जाएगा, और हमारा वो रैम का वो जो मेमोरी लोकेशन है which is starting from 60H to कहां तक के जाएगा, 16 रैम बोला तो 60H to 6FH। कितने लोगों को समझा, ज्योति समझा, गुड। किती लोकांना समजलं, गुड। हाँ फिर से बात, वेरी नाइस। पूछो, मुझे ये क्वेश्चन वाले चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले चेहरे में एक्साइटमेंट रहता है कि क्या पूछा, क्या बताया। तो यू आर ईगर टू हियर दोस थिंग्स ना, ऐसा इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 60H से स्टार्ट करके 16 मेमोरी लोकेशन को क्लियर करना है, या हमारे को उसको 0 करना है। तो 60H से अगर मैंने स्टार्ट किया तो व्हाट वुड बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन, 6FH। 60 से स्टार्ट किया ना, 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E एंड 6F। इसलिए मैंने कहा 6F तक के वो साफ कर, समझा अभी। तो 60 से लेकर 6F, इफ यू गो ऑन इंक्रीमेंटिंग दैट R1 अप टू 16, जो काउंटर हम लोगों ने डाला। Clear? Have you got this? समझा? चलिए, so I guess this much is enough for today. We'll study this in external data by in the next class, hopefully tomorrow. चलेगा? चलेगा? किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? पेट दुख रहा है, सर दर्द? नहीं. So thank you very much for joining, and please go through my YouTube channel. Like, share and subscribe my YouTube channel, and see you in the next class. Thank you very much. Have a nice day. Good day. Okay.